Hello everyone. UPSC 2021 Prelims has just concluded. By means of this video, I, Ayush Gupta, will be discussing with you the economy related questions that were asked in today's exam. So this year, 15 questions were asked from economy section. Most of the questions were from static portion. Any individual with a fine understanding of the static part could have very well attempted this paper. So we are discussing the C set of the paper. It starts with question number 81. Let us have a look at these questions and their answers. So, the money multiplier in an economy increases with which one of the following? So, money multiplier has relation with credit creation operation of the bank. If bank will have more money, the money multiplier will increase. So, options are option A, increase in cash reserve ratio in the banks. अगर कैश रिजर्व रेशो के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक विल बी लेफ्ट विद लेस मनी, देयरफॉर मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज. इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इन द बैंक. एसएलआर अगर इंक्रीज हो जाएगा, बैंक को ज्यादा फंड्स रखने पड़ेंगे फॉर पर्पस ऑफ लिक्विडिटी, देयरफॉर क्रेडिट क्रिएशन के लिए बैंक के पास कम फंड्स होंगे, मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज. इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल. यदि लोगों की बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होती है, देन बैंक विल हैव मोर डिपॉजिट्स. मोर डिपॉजिट्स का मतलब ज्यादा पैसा, विच मीन्स बैंक्स मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी विल इंक्रीज, मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज. डी ऑप्शन इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री का नेसेसरली ये मतलब नहीं होता दैट पॉपुलेशन विल एंटर इनटू बैंकिंग सिस्टम. देयरफॉर ये ऑप्शन गलत है. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी गलत है. Correct option is option C. So, moving on to question 82. So, with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused, number one, or increased by which of the following? Demand pull inflation क्या होती है? Demand pull inflation वह सिनेरियो होता है in which the demand is more and the supply could not meet it, and which is why the prices of the commodity will increase because there will be less goods in the market, whereas more people are there to pay for those goods. So naturally वह सारे options जिससे market के अंदर money supply increase होगी, वो सारे कारण होंगे demand pull inflation के लिए increase होने के. So if you look at the options, this question can be solved by elimination method. ऑप्शन 5 अगर हम देखते हैं तो वो कहता है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स. अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स होंगे तो लोग कम लोन लेंगे, लोगों के पास कम पैसा होगा, विच मीन्स दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. सो अगर हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे यहां पे, सो यू कैन सी दैट अपार्ट फ्रॉम ए ऑप्शन ऑल द ऑप्शंस आर हैविंग 5 एज एन ऑप्शन. Therefore, option A is correct. Moving on. Question 83. With reference to India, consider the following statements. Retail investors through demat accounts can invest in the treasury bills and government of India debt bonds in primary market. ये RBI ने recently allow कर दिया था retail investors को ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए. देन द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो जो CDSL है वो बेसिकली is only promoted by Bombay Stock Exchange. This was in news because CDSL का recently IPO आया था. Therefore, option 1 and 2 is correct. Option 3 is wrong. RBI is not a promoter of CDSL. So, answer is B of question 83. Now, question 84. With reference to water credit, consider the following statements. Now, ये current से related question है economy का. So, questions है. It puts microfinance tool to work in water and sanitation sector. It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and the World Bank.
and last is its aim is to enable poor to meet their water needs without depending on subsidies. So basically जहाँ क्रेडिट की बात हो रही है वहाँ सब्सिडी तो इट इज एंटीथीसिस. जब वाटर के लिए वाटर फाइनेंसिंग के ऑप्शंस के लिए क्रेडिट देने की बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज देयर टू रिड्यूस सब्सिडीज ओनली. सो वाटर क्रेडिट इनिशिएटिव है water.org. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इस ऑर्गेनाइजेशन ने माइक्रो फाइनेंसिंग टूल्स जनरेट करे हैं जिसके थ्रू लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर वाटर नीड्स. सो इसको फंड्स मिलते हैं बाय वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. सो इट इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक. देयरफॉर द आंसर इज C 1 and 3. Question 85. In India, the central banks function as the lender of last resort usually refers to which of the following? So, पहला ऑप्शन ये कहता है कि इंडस्ट्री और ट्रेड बॉडीज के लिए, सो नो, सेंट्रल बैंक डज नॉट प्राइवेटली डील विद इंडस्ट्री और ट्रेड बॉडीज. सेकंड इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस. सो ये तो सबको पता ही है, दिस इज शॉर्ट. सो 2 इज करेक्ट. थर्ड इज लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स. सो this is wrong because when there is case of budgetary deficit, RBI does not lend to people, lend to the government. RBI lends to the government under ways and means advances. So answer is B, that is only 2. And ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था? बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात हो रही है. ड्यू टू कोविड लार्जली गवर्नमेंट की इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ गया था. सो ये इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जी ने कहा था कि आरबीआई को बेसिकली मनी ज़्यादा छाप देना चाहिए इन ऑर्डर टू कवर अप गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट. कंसिडर द फॉलोइंग. क्वेश्चन 91. The governor of Reserve Bank of India is appointed by the central government. This is correct. Certain provisions of the Constitution of India give the central government the right to issue directions to RBI in public interest. So यहाँ पे word आप ध्यान रखिए, certain provisions of the Constitution. RBI is not a constitutional body, it is a statutory body under the RBI Act and therefore ये गलत है. The governor of RBI draws his power from the RBI Act. This is correct. Which one of the following statements are correct? Answer is option C. बेसिकली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 के अंदर गवर्नमेंट को कहा था कि सेक्शन 7 के अंतर्गत वह अपनी पावर्स को इन्वोक करे अंडर आरबीआई एक्ट एंड गिव सर्टेन डायरेक्शंस टू द गवर्नर ऑफ द आरबीआई. कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ द आरबीआई से डील करता है, जिसके तहत सरकार अपॉइंटमेंट करती है आरबीआई की गवर्नर की एंड उसे कुछ डायरेक्शंस भी दे सकती है. देन क्वेश्चन 92. With reference to casual workers employed in India, consider the following statements. Number 1 statement. All casual workers are entitled for employees provident fund coverage. This statement is correct. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रूल किया था 2020 के अंदर. इसके तहत केस था पवन हंस लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस एविएशन कर्मचारी संगठन, सुप्रीम कोर्ट. सो स्टेटमेंट 1 is correct. Just a second. So, all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. So, ये एक state subject भी है casual workers का to deal with their working time and payments. So, in this very respect, different states are having different rules. So, with certainty we cannot say कि इसका आंसर ये statement 2 correct होगी या नहीं. Third statement is the government can by a notification specify that an establishment or an industry shall pay wages only through its bank account. So payment of wages act के अंतर्गत सरकार ये कर सकती है. इसमें सरकार वेज नहीं डिसाइड कर रही, सरकार मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड कर रही है. तो सरकार कह सकती है कि आप बैंक के थ्रू दीजिए. ये कॉमन भी हम सोच सकते हैं कि सरकार के पास जनरली भी ये पावर होती है जब सरकारें हमारे ऊपर लिमिट्स रिसेंटली लगा देती हैं कि हम कैश में कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. सो इसका आंसर है सी. 1 and 3 are correct. Coming to question 93. Which among the following steps is the most likely to be taken in the time of economic recession? Economic recession यानी कि आपकी GDP growth डाउन जा रही है. So ऐसे कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा probable in during the times of economic recession? Cut in tax rates accompanied by increase in interest rate.
अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो लोगों के पास कम पैसा होगा, लोग कम लोन लेंगे, सो नेचुरली ये तो गलत होगा, इससे रिसेशन खत्म नहीं होगा। Increase in expenditure on public projects during times of recession, what happens is public final consumption expenditure decreases, the investment expenditure of private entities also decreases, so option रह जाता है सिर्फ सरकार को अपना expenditure बढ़ाने के लिए, so B is correct। Let us see C, increase in tax rate accompanied by reduction in interest rate, tax बढ़ा दिया, लोगों के जेब से आप पैसे ले लेंगे। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, वैसे ही रिसेशन चल रहा है और आप सरकार भी अपने पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर एक्सपेंडिचर कम कर देगी, तो देयर इज नो वे टू गेट आउट ऑफ इट, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ, बाकी सारी चीजें अनचेंज रहेगी, तो हम ये देखना है कि कौन से फैक्टर से एक गुड की मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इफ प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, सो चाय और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर बाकी सब कुछ सेम है और कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग नेचुरली चाय को प्रेफर करेंगे, सो यस, वन इज करेक्ट। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पेन एंड इंक, अगर एक फाउंटेन पेन है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको बिना आप इंक के चला नहीं सकते, अगर इंक का प्राइस बढ़ा दोगे तो नेचुरली आप सोचोगे फाउंटेन पेन भी ना चलाएं, हम नॉर्मल पेन पे आ जाते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड इज द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, सो इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। अगर गुड इंफीरियर है, आप मार्केट में अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, जैसे जैसे इंसान व्यक्तियों की इनकम बढ़ती है वह अच्छे गुड्स पे चले जाते हैं, सो नेचुरली आपकी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड की क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो ये है गलत। इफ इट्स प्राइस फॉल्स, सो अगर गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो नेचुरली बाकी सब कुछ सेम है, गुड भी आप वही परचेज करते हैं, तो नेचुरली आप ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, सो आंसर इज, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इंक्रीज कब होगी? जब प्राइस फॉल हो जाएगा या फिर जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, आंसर इज ए। क्वेश्चन 95, with reference to urban cooperative banks in India, consider the following statements. So they are supervised and regulated by local boards set up by the state governments. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड होते हैं लोकल बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के से जो इस्टेब्लिश करती है, ये बिल्कुल ही गलत है। कॉन्टेक्स्ट हमसे उस इसका है पीएमसी बैंक, महाराष्ट्र के अंदर पीएमसी जो कि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, जब उसके यहाँ क्राइसिस शुरू हुआ, लिक्विडिटी क्राइसिस, तब आरबीआई ने उसके ऊपर रेगुलेशंस लगानी शुरू कर दी। इससे ही हम जान सकते हैं दैट यस, आरबीआई आल्सो रेगुलेट्स देम, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड इस ऑप्शन को देखते हुए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, आंसर वुड बी बी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? सो 2, yes they can issue equity shares and preference shares, yes they were bought under the purview of Banking Regulation Act of year 1949. Then question 96, Indian government bond yields are influenced by which of the following? So bond के ऊपर question naturally expected था, because last year में bond yields के अंदर बहुत फर्क आया with increasing liquidity in the market of the money due to COVID induced liquidity थी, सरकारों ने ज़्यादा खर्चा किया, interest rate decrease कर दिए गए। So गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड डील्स पे किस किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है? पहला ऑप्शन है एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। डॉलर सुनामी की बात बेसिकली आई थी, जैसे कि मैं आप कह रहा हूँ लिक्विडिटी इंक्रीज होने की, सो यस इट विल इम्पैक्ट एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो नेचुरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट क्या रखता है? अगर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो जाती है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, सो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो एक स्पेकुलेशन का फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, लोग सोचते हैं कि सरकार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी, उस करके भी बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। सो select the correct answers using the code given below. So all three are correct. Answer is option D. Question 97.
consider the following: foreign currency convertible bonds, foreign institutional investments with certain conditions, global depository receipts, non-resident external deposits. Which of the following can be included in foreign direct investments? So यहाँ पे हम देख लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती, FII एंड FDI टोटली डिफरेंट थिंग. नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ये पहले ही डिपॉजिट का मतलब है, दैट मीन्स कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही है. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, यहां पे हमारे पास रह जाता है ऑप्शन. सो आंसर इज बी. $98 question. Consider the following. The effect of devaluation of a currency is that necessarily it improves the competitiveness of domestic exports in the foreign market. अगर हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया है, सो नेचुरली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे गुड्स ज़्यादा बिकेंगे, बिकॉज अब $1 विल बी एबल टू बाय मोर गुड्स. सो हमारे गुड्स ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं. इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. एक तरफ हम क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. अगर हम डीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो विज़िबी फॉरेन करेंसी के ही तो करते हैं, सो हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कैसे हो जाएगी? 2 इज रॉन्ग देयरफॉर. इंप्रूव्स ट्रेड बैलेंस. नाउ यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं जे कर्व के बारे में. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपने अपनी करेंसी डीवैल्यूएट करी है तो आपका ट्रेड बैलेंस भी इंप्रूव हो जाएगा. वाई? इंडिया के कंटेक्स्ट में क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एनर्जी इंपोर्ट्स होता है, एंड अगर हमारी करेंसी डीवैल्यूएट हो जाती है तो हमारे जो एनर्जी इंपोर्ट की वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल इंप्रूव आवर ट्रेड बैलेंस. सो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली ए. यही इंपैक्ट होगा, दैट इज इंप्रूवमेंट इन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर गुड्स ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. Question 99. Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry of the government of India? Now हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्लैक मनी के ऑल्दो बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं, लेकिन सरकार का मेन वरी का कॉज क्या रहता है ब्लैक मनी के रिस्पेक्ट में? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग प्रॉपर्टीज. यहाँ पे नीचे होएगा अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, लार्ज डोनेशंस टू पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म. डी इज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन. सो इसका आंसर है डी, बिकॉज यस बाकी सारे भी इंपैक्ट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी. ब्लैक मनी की डेफिनेशन वो होती है वह मनी जो कि टैक्स परव्यू से बाहर रह जाती है. सो सरकार सबसे पहले अपने रेवेन्यू के बारे में ही देखेगी. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन डी वुड बी द राइट ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 100th. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? इन्फ्लेशन कब होता है? जब मार्केट में नया पैसा आता है या ज्यादा पैसा आ जाता है. ऑप्शंस देखते हैं. रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ये कोई नया पैसा नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में था जो सरकार ने बोरो कर लिया. बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट. बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट. क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट. यहाँ पे ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस के अंदर कोई भी नया पैसा नहीं बन रहा था, वेयरएज लास्ट में क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट. इससे मार्केट में नया पैसा आता है, एंड देयरफॉर आंसर वुड बी डी. सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स 2021. डिटेल्ड आंसर की विल बी रिलीज्ड tomorrow. So that is all from my side. Thank you and have a nice day.